welcome back students to the economics class. As you are aware of the fact that we have started with the chapter LPG policy, and today we will be doing the last few topics of this chapter. You have covered liberalization, privatization and globalization in detail. This chapter is extremely important from examination point of view. You can expect around 5 to 6 marks paper from this chapter. So that is why we have been doing this chapter in quite details and slowly, right? So after doing all the things, we have already covered the fact that we have already covered the merits of LPG policy. Today we will be starting with demerits of LPG policy. All that glitters is not gold. I hope you have heard of the same. And the same applies to LPG policy also. There were a lot of merits of LPG policy, यानी कि जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 आए, उनके बहुत सारे अच्छे इम्पैक्ट्स हुए. अच्छे इम्पैक्ट्स क्या हुए? इंडियन इकोनॉमी बिकेम मोर लिबरलाइज्ड, रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी वाज रिमूव्ड, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी वाज स्टार्टेड, ग्लोबलाइजेशन हुई, इंटीग्रेशन होनी स्टार्ट हो गई, यानी कि द होल वर्ल्ड स्टार्टेड टू बिकम वन. एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बिकेम मोर लिबरल, इंडस्ट्रीज खोलना आसान हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना आसान हो गया. पर इसके काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी सामने आए. लेट्स डू देम वन बाय वन. सो द वेरी फर्स्ट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसी इज निग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर. सो एलपीजी पॉलिसीज का जो मेन फोकस था वो था सर्विस सेक्टर. जैसे आपने सब ने ऑलमोस्ट सुनी होगी कंपनी इन्फोसिस, ठीक है. इन्फोसिस कंपनी सर्विस सेक्टर में है, ठीक है. इंडस्ट्री में भी काफ़ी सारे एमएनसीज हैं. एमएनसीज क्या होते हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज. मल्टीनेशनल कंपनीज आर द कंपनीज विच ऑपरेट इन वेरियस कंट्रीज, ठीक है. उनका एक हेडक्वार्टर होता है, दे ऑपरेट इन डिफरेंट कंट्रीज. व्हाट आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एमएनसीज? एप्पल, कोका-कोला, नेस्ले, इन्फोसिस, HCL. दीज आर अ फ्यू एमएनसी एग्जांपल्स, ठीक है. Neglect of agriculture. This question appeared in 2020 board examination. How LPG policy resulted in neglect of agriculture. So इसको ध्यान से सुनना, ठीक है. New economic reforms, they mainly focused on service sector and also on secondary sector, but they did not focus on agricultural sector. No foreign direct investment was possible in agricultural sector. Nothing was done to improve the agriculture sector of our country. And as you know, in India, most of the population is dependent on agriculture. So agriculture को काफ़ी ज़्यादा निगलेक्ट किया गया, ठीक है. तो इससे क्या हुआ कि अर्बन और रूरल एरियाज़ का जो गल्फ है वो ज़्यादा वाइड होता गया. मीन्स द अर्बन वाले लोग थे, क्योंकि इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर हमेशा अर्बन एरिया में ही होगा, और रूरल एरिया में क्या होता है? एग्रीकल्चर और डेवलप नहीं हो रहा था. सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो रही थी. सो इससे अर्बन और रूरल गल्फ जो है वो ज़्यादा वाइड होता गया. Post new economic policy of 1991, the growth of GDP has largely been driven by the secondary and tertiary sectors of the economy. So secondary में industry आ जाती है, tertiary में service sector आ जाता है. Agriculture sector has suffered a serious neglect and its growth rate has slipped to a miserable level of 2 to 3% per annum. So post the economic reforms, the growth of agriculture was just how much? 2 to 3%. So 2 to 3% is very low level of growth per annum. So this led to widening gulf between the rural and urban economies, implying the spread of poverty. Because urban areas में growth हो रही थी, rural areas में growth नहीं हो रही थी, तो इससे rural areas में poverty was growing more and more. In fact, the slow growth of agricultural sector must ultimately hinder the process of industry sector also. तो इस पॉइंट को करते हैं ध्यान से. अगर एग्रीकल्चर सेक्टर निगलेक्ट होगा तो उससे अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल सेक्टर भी निगलेक्ट होगा. लेट्स डू दैट हाउ. बिकॉज इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री डेवलप होगी तो एग्रीकल्चर डेवलप होगा. अगर इंडस्ट्री मशीन्स नहीं बनाएगी तो एग्रीकल्चर को हार्वेस्टिंग मशीन, ट्रैक्टर कैसे मिलेगा? अगर एग्रीकल्चर डेवलप नहीं होगा तो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को कौन देगा? और अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो वो नहीं चलेगा. मीन्स दीज बोथ सेक्टर आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. तो इफ एग्रीकल्चर सेक्टर विल बी निगलेक्टेड, इट विल
industrial base of the country also, right? Next, अर्बन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। तो अभी हमने किया कि रूरल एंड अर्बन का जो ग्रोथ प्रोसेस था उसमें काफ़ी गैप आ गया था, ठीक है। तो और इस पॉइंट को करते हैं, अर्बन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस मीन्स द MNCs वर फ्लडेड इन जस्ट अर्बन एरियाज। हैव यू एवर हर्ड ऑफ ए MNC इन सम रूरल एरिया? maybe not, or maybe some rare company in some rural area. इन्फोसिस हो गया, ये सारी मेजर कंपनीज मुंबई, गुजरात, बेंगलोर में है। कोई ऐसी MNC नहीं है जो रूरल एरिया में है। और इससे क्या होता है, द अर्बन एंड रूरल गल्फ जो है वो बढ़ जाता है। मीन्स द डिवाइड, द गैप बिटवीन, द ग्रोथ गैप बिटवीन द अर्बन एंड रूरल एरियाज इंक्रीजेस, ठीक है। लेट्स डू दैट। LPG policies have resulted in the growth, in the concentration of growth process in urban areas. All MNCs are focusing only on urban areas where they find infrastructural facilities. So this widens the rural-urban gulf. Rural-urban gulf implies economic dualism, which deepens social dualism. So economic and social dualism is always a big threat to the growth development. ठीक है। सो इकोनॉमिक डुअलिज्म क्या होता है, जब ट्रेडिशनल सेक्टर ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पे रिलाई करता है और जो मॉडर्न सेक्टर है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे रिलाई करता है। तो इसका मतलब यही है कि जब रूरल एरियाज की कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही तो वो तो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पे रिलाई करेंगे, और जो एरियाज डेवलप हुए हैं वो मॉडर्न एरिया पे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे रिलाई करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक डुअलिज्म, टू फेसेस ऑफ टेक्नोलॉजी, वन रिलाइंग ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वन रिलाइंग ऑन ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। इससे सोशल डुअलिज्म भी हुआ। सोशल डुअलिज्म का मतलब होता है जब इकोनॉमी में सोसाइटी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, हैव्स एंड हैव नॉट्स। हैव्स होते हैं रिच, हैव नॉट्स होते हैं पुअर। तो सोशल डुअलिज्म भी LPG पॉलिसी की देन है, जिसमें रिच आर बिकमिंग मोर रिच एंड पुअर आर बिकमिंग मोर पुअर, thus dividing the society into two classes, haves and have-nots, ठीक है। Next, spread of consumerism. Now consumerism, I hope you have heard this term earlier also. Let me explain you in detail. What is consumerism? Consumerism is a way where people spend more and more on goods and services. Where people want more and more good services, they spend unnecessarily on goods and services which are not even required by them. LPG पॉलिसी आने के कारण एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई हमारी कंट्री में, दैट वी वर गेटिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। सो यू हैव डन इन द मेरिट्स ऑल्सो दैट नाउ अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स वाज अवेलेबल टू इंडियन मार्केट। सो पहले हमारे पास, अगर एक जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊँ, पहले लोगों की नीड्स लिमिटेड थी। हमने ये बहुत बार पहले भी मैंने आपको बोला है कि पहले लोगों की नीड्स लिमिटेड थी। इट डिडंट मैटर टू पीपल कि हम जीन्स कौन से ब्रांड की पहन रहे हैं या हम कौन से ब्रांड का बैग ले रहे हैं। बट नाउ दीज थिंग्स मैटर अ लॉट बिकॉज वी हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स वेयर वन बैग इज ऑफ 1000 रुपीज एंड ऑन द अदर हैंड वन बैग इज ऑफ 1 लाख ऑल्सो। तो ये सारी किसकी देन है? LPG पॉलिसीज की। मतलब वैरायटी ऑफ गुड्स जो है अवेलेबल हमारे पास वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, और जितनी ज़्यादा वैरायटी होती है चीज़ों की उतनी ही ज़्यादा लोग क्या करते हैं? स्पेंड करते हैं, ठीक है। पहले लोगों की नीड्स लिमिटेड थी, दे वर वेरी हैप्पी विद 2 or 3 पेयर्स ऑफ क्लोथ, बट नाउ इज इट सो? नो, वी आर नॉट satisfied even with hundreds of clothes and we are always in urge of buying more and more. We are not satisfied with one bag, we want many bags. Not satisfied with one pair of shirt and pant, we want more and more, right? तो हमारे पास चीज़ें इतनी है सामने कि ऑटोमेटिकली लोग जो है वो स्पेंड ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म क्या है? दैट ड्यू टू द LPG पॉलिसीज पीपल हैव स्टार्टेड टू स्पेंड मोर ऑन अनवांटेड गुड्स एंड सर्विसेज, जो उनकी ज़रूरत भी नहीं है उस पर भी स्पेंड करना शुरू कर दिया। सो जितना कमाते हैं उतना स्पेंड भी कर देते हैं। एंड नाउ द कल्चर ऑफ इंडिया इज शिफ्टिंग टू वेस्टर्न कल्चर, मीन्स जो एक ट्रांजिशन हो रही है, हम इंडियन कल्चर को भूलते जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर में जाते जा रहे हैं। बिकॉज वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है दैट पीपल स्पेंड ऑल दैट दे अर्न ड्यूरिंग अ वीक,
एंड अगर कोई एकदम से नीड आ जाए तो फिर वो बोरिंग करते हैं। तो इंडियंस भी उन्हीं फुट स्टेप्स पे चल रहे हैं आजकल, ठीक है। एंड दिस इज all due to LPG policy, due to coming of MNCs, due to liberalization, privatization and globalization. Next, low level of industrial growth. Now, as we have already discussed, I spoke in first point also कि सर्विस सेक्टर के ऊपर MNCs का ज़्यादा फोकस रहा है, ठीक है। फिर हमने किया थोड़ा बहुत इंडस्ट्री में भी है, पर एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल निगलेक्ट हो रहा है। बट देर इज़ वन मोर आस्पेक्ट ऑफ द सेम व्यू पॉइंट जिसके अकॉर्डिंग क्या है, जैसे सपोज अगेन गिविंग यू अगेन एन एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दी, कोटा बैरियर्स रिमूव कर दे, इंपोर्ट टैक्सेस को कम कर दिया, ठीक है, सो दैट वी बिकम मोर ग्लोबलाइज्ड, है ना। तो ये सारी रेस्ट्रिक्शंस रिमूव करने से क्या हुआ, हम सिल्क जो है वो बाहर से इंपोर्ट करने लग गए। सपोज we have started to import silk, but silk is manufactured in India as well. तो जब बाहर से सिल्क आ रही है, मे बी जहाँ से हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं सिल्क को, मे बी वहाँ पे सिल्क बहुत सस्ते में इंपोर्ट हो रही है, पर यहाँ पे जो सिल्क बन रही है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। तो इंपोर्ट्स ज़्यादा करने से क्या नुकसान होता है, व्हेन वी इंपोर्ट मोर एंड मोर थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड, इट leads to one drawback that the industry, domestic producer, यानी कि जो domestic industry है, इंडिया की domestic industry है, उसको एक बहुत बड़ा एक नुकसान सहना पड़ता है। क्या नुकसान, that they are not able to face the competition that is being posed due to more and more imports, ठीक है। So shut down of industry होना शुरू हो गया। So post-economic reforms in India, the domestic producers failed to face competition from outside producers. So many small industrialists were forced to shut down their businesses because they were not able to compete with the foreigners. ठीक है, तो इससे हमारी इंडस्ट्री के ऊपर भी बहुत बुरा इफेक्ट हुआ, ठीक है। So 4 हमने कर लिए हैं impacts, 5th वाला है unbalanced growth process। देखो 5th पॉइंट करने से पहले let me tell you one thing, that in every book you will find different negative impacts. So please don't tell me that you have not covered this point or you have not covered that point. I am making the things as simple as possible, ठीक है। So आपको जो चीज़ अच्छी लगती है you can do that, right? So there are many view points, इससे बहुत ज़्यादा भी डिसएडवांटेजेस आपको बताए जा सकते हैं, पर हम कुछ 6 मेन वाले कर रहे हैं, ठीक है, और इससे भी ज़्यादा आप कर सकते हो, ठीक है। Unbalanced growth process, here I have given you few examples, telecommunication, real estate, hospitality. So in India, due to the economic reforms, growth process was unbalanced. Unbalanced कैसे, that MNCs were focused on a few sectors like real estate, hospitality, telecommunication. Here you can write about food junctions also, KFC, Domino's. These are what? These are MNCs. Food junctions में अगर देखा जाए बहुत सारे MNCs हैं, telecommunication में बहुत सारे हैं, वोडाफोन है, ठीक है, रियल एस्टेट में बहुत सारे हैं, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में बहुत सारे हैं, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज जैसे होटल्स की सर्विसेज हो गया, ठीक है। तो ऐसे सेक्टर्स में बहुत सारे MNCs दिखते हैं, पर कभी कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने देखा है, तो ये पॉइंट इसके साथ काफ़ी रिलेटेड भी है। इसको आप बोल सकते हो लोप-साइडेड ग्रोथ प्रोसेस, मीन्स द ग्रोथ प्रोसेस ड्यू टू LPG वाज लोप-साइडेड, मीन्स अनइवन, ऐसे, ठीक है, एक साइड पे ग्रोथ है, एक साइड पे नहीं है, ठीक है। तो अ फ्यू सेक्टर्स वर फोकस्ड, रेस्ट वर इग्नोर्ड कंप्लीटली, ठीक है। तो इससे ग्रोथ प्रोसेस अनइवन थी, काफ़ी ज़्यादा लोप-साइडेड थी। लास्ट इज कल्चरल इरोजन। कल्चरल इरोजन, now due to the coming of more and more MNCs, due to liberalization, privatization, globalization, Indians have been deprived of their cultural values. Where earlier people's needs were limited, the family loyalty was very important, but nowadays as we are becoming more and more extravagant, there is a spread of consumerism, people are falling short of कल्चरल वैल्यूज़। कल्चरल वैल्यूज़ कम हो गई। पहले कहाँ लोग इकट्ठे बैठ के टीवी देखते थे, ठीक है, नीड्स कम थी, कम भी गुजारा
कर लेते थे, ठीक है। अब क्या हो गया, वीकेंड हॉलीडेज पे जाना है, वीकेंड स्पेंड करना ही करना है। देखो ये वीकेंड का कॉन्सेप्ट भी ना वेस्टर्न कल्चर की देन है, टू बी ऑनेस्ट। अर्लियर पीपल वर नॉट नोइंग व्हाट इज वीकेंड, है ना। संडे यूज्ड टू बी द वीकेंड एंड नाउ फ्रॉम फ्राइडे इवनिंग टिल संडे इवनिंग इट्स वीकेंड। एंड जो वीकेंड स्पेंड नहीं करता, पीपल लुक डाउन अपॉन हिम और हर, ठीक है। तो ये वीकेंड का कॉन्सेप्ट भी कहाँ से आया है, बाहर से ही आया है। तो ये सारा एलपीजी की देन है, कल्चरल इरोजन। पीपल आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ देयर कल्चरल वैल्यूज़, उनकी जो वैल्यूज़ है वो ख़त्म होती जा रही हैं। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, इकट्ठे नहीं बैठते, अलग अलग अपने अपने रूम्स में बैठे हैं, ठीक है। हर एक के रूम में अपनी टेक्नोलॉजी है, टीवी है, एसी है ना। तो ये कल्चरल इरोजन हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो अब हमने सारा चैप्टर कर लिया, हमने किया इसके क्या मेरिट्स हैं, इसके क्या डीमेरिट्स हैं। अब करना क्या है, विच वे टू गो। Is LPG very bad? No, it is not bad. Everything has some good and bad effects. There is nothing in this world which has just good effects. Everything comes with a price also, ठीक है। तो LPG पॉलिसीज़ के फिर नुकसान हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं। तो एक मिडल वाला रास्ता अपनाना चाहिए हमें। There should be a middle way in which we just not focus on the urban areas. We must focus on the rural areas also. Government should do more. Government is already doing that, by the way. They have covered in budget that tax subsidies, tax holidays, subsidies are being provided if one establishes industry in the rural areas, ठीक है। फिर सिर्फ फूड जंक्शन, KFC, डोमिनोज पे फोकस मत करो, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो उन पे भी फोकस करो, ठीक है। तो गवर्नमेंट नीड्स टू follow some steps regarding that also. So this was about the chapter. Now, two specially emphasized topics that have been introduced this year by CBSE board in your syllabus are demonetization and GST. So in liberalization you have done financial sector reforms. So financial sector reforms के अंदर today we'll be doing the topic demonetization. I think this is the favorite topic of board for commerce students, right? You might have done earlier also, you have heard about this many times. Before starting, let me give you one clue that you don't need to go in too much depth. Like in your book Sandeep Garg, some things have been given in quite detailed manner, but it's not important कि आप 4 pages उसके learn करो. Yes, you can expect a 6 marks question, बट उसके अकॉर्डिंग ही हम करेंगे जितना को हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। ज़्यादा आपने उसमें नहीं जाना, इन पर्टिकुलर स्मॉल थिंग्स, यू डोंट नीड टू गो इन दैट, राइट। सो लेट्स बिगिन। सो इन 2014 नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट आई इंडिया में, ठीक है। इन 2016 on November 8 at 8 PM there was a speech by Prime Minister Modi where he said that आज से 500 rupees and 1000 rupees के नोट जो हैं they are just a piece of paper, that is no more a valid currency. आज के बाद 500 और 1000 rupees का नोट जो है वो नहीं चलेगा, ठीक है। ये भी बोला गया कि 9 नवंबर को बैंक्स बंद रहेंगे। It was a very confidential matter, जो एकदम से it came as a bolt from blue and left everyone in shock. Right, याद है शायद आपको। तो it was a very big shock and this is a memorable experience for Indians. इससे पहले भी 1948 में शायद 2 बार हुआ है, इससे पहले 1948 में हुआ है पहले भी, तब भी बीजेपी गवर्नमेंट ने किया था ये डीमोनेटाइजेशन। उस टाइम पे 10,000 5,000 रुपीज़ के नोट्स को डीमोनेटाइज किया गया था, ठीक है। इसको एक स्टोरी की तरह करेंगे, ठीक है। 9 नवंबर को बैंक्स को बंद रखा गया बिकॉज द बैंक्स वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस सिस्टम, ठीक है। उनको एक दिन चाहिए था प्रिपरेशन के लिए। बहुत बड़ा चेंज आया था इंडियन इकोनॉमी में और आज तक हम देखो उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेट्स डू इन डेप्थ ये क्या था, क्यों आया, ठीक है। तो जब ये डीमोनेटाइजेशन हुई तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने 500 और 1000 के नोट को बंद करके एक न्यू नोट निकाला 2000 रुपीज़ का। अर्लियर 2000 रुपीज़ नोट वाज नॉट इन सर्कुलेशन, इट वाज अ न्यू नोट एंड अ न्यू 500 रुपी नोट ऑल्सो केम इनटू
सर्कुलेशन। तो एक्चुअली ये डीमोनेटाइजेशन नहीं है, ये रीमोनेटाइजेशन है, ठीक है। रीमोनेटाइजेशन कैसे, 500 के नोट को रिप्लेस किया गया विद न्यू नोट, ठीक है, तो ये रीमोनेटाइजेशन है। डीमोनेटाइज 1000 के नोट को किया गया एंड इट वाज रिप्लेस्ड विद अ 2000 करेंसी नोट, ठीक है। तो पहले करते हैं मीनिंग क्या होता है डीमोनेटाइजेशन का। When the government withdraws the status of legal tender from the existing currency. In the very first lecture, money and banking, macroeconomics, we have done what is money. उसमें भी हमने ये चीज़ की थी legal tender, if you remember. तो legal tender क्या है? Something that is legally bound to be accepted as medium of exchange. तो legal tender का status मिला हुआ है हमारी जितनी भी करेंसी नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, these are all legal tender. मीन्स आप रिफ्यूज नहीं कर सकते कि मैं ये नोट नहीं लूँगा, ठीक है। तो लीगल टेंडर का जो स्टेटस है वो गवर्नमेंट ने विथड्रॉ कर लिया फ्रॉम द एग्जिस्टिंग करेंसी एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो गेव 2 months टू एक्सचेंज योर 500 रुपी नोट एंड 1000 रुपीज नोट विद करेंसी, अदर करेंसी जो वैलिड है, जो लीगल है, ठीक है। तो सबसे पहले जब ये स्टार्ट हुआ तो पहले तो ओवर द काउंटर एक्सचेंज का सिस्टम आया। ओवर द काउंटर एक्सचेंज मीन्स पीपल वर सपोज टू गो टू द बैंक एंड एक्सचेंज देयर मनी, दे वर सपोज टू शो अ लीगल आईडी, अपनी जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो शो करेंगे और उनको बदले में नोट मिलेंगे, ठीक है। तो ये इसका भी एक था कि एक लिमिट लगाई गई कि जैसे 4000 या 4500 तक आप एक्सचेंज करा सकते हो। अब बैंक्स में भी इतनी कैश नहीं थी, है ना, तो कई बार तो 10-10 रुपए के नोट देते थे बैंक वाले, 100 रुपीज़ के नोट देते थे। 2000 का नोट इतना नहीं था उस टाइम पे, मतलब धीरे धीरे उसकी प्रिंटिंग हो रही थी ना। तो पीपल वेंट टू बैंक्स, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी और वो लोग अपनी करेंसी को एक्सचेंज कराते थे। फिर कुछ दिन बाद इसका एक ड्रॉबैक सामने आया। क्या ड्रॉबैक सामने आया कि जो लोग अपने आईडी प्रूफ जो दिखा के, कभी जैसे सपोज पहले मैं बैंक गई, मैंने अपना आधार कार्ड दिखाया और करेंसी को एक्सचेंज करना है, ठीक है। फिर किसी और बैंक के पास मैं चली गई और मैंने अपना लाइसेंस दिखा दिया, तो मैं एक दिन में 4000 को ही एक्सचेंज करा सकती हूँ, पर मैंने उस चीज़ को मिसयूज़ किया, मैं अपनी कोई और आइडेंटिटी प्रूफ लेके चली गई, है ना। तो ये चीज़ें बैंक्स को बाद में पता लगी, गवर्नमेंट को बाद में रियलाइज़ हुआ, तो फिर उसके बाद इन्होंने ओवर द काउंटर एक्सचेंज को बिल्कुल ख़त्म करके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं उनको आप एक्सचेंज करा सकते हो विद द न्यू करेंसी, विद द वैलिड करेंसी, ठीक है। तो ये बाद में हुआ कि अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं उन्हीं को आप कर सकते हो एक्सचेंज, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये डीमोनेटाइजेशन क्यों स्टार्ट की गई? बिकॉज इंडिया में ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा हो गई थी, फेक करेंसी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो ये 2 मेजर प्रॉब्लम्स आ रही थी। उसके अलावा एक और चीज़ थी, आई फॉरगॉट, यस, कर्बिंग इलीगल ट्रांजैक्शंस एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़। एंटी सोशल एक्टिविटीज़ जैसे कि ब्लैक मनी रखना। अब ये ब्लैक मनी क्या है? ब्लैक मनी इज़ अनअकाउंटेड मनी, जिस मनी का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं होता। जो भी मनी एक वैलिड तरीके से अर्न की जाती है वो बैंक में डिपॉजिट करने से कोई नहीं कतराता, पर जो मनी इलीगल तरीके से अर्न की जाती है वो कभी भी कोई बैंक में डिपॉजिट नहीं कराता, बिकॉज उसके ऊपर टैक्स पड़ता है। अगर आपकी इनकम बैंक में पड़ी है ना तो उसके ऊपर टैक्स पड़ेगा इफ़ यू फॉल इन दैट टैक्स लिमिट, है ना। बट जो लोग गलत तरीके से पैसे कमाते थे, वो मैनी पीपल हु अर्न, देयर आर मैनी पीपल एक्चुअली हु अर्न मनी बाय इलीगल मैनर, सो ऑल दोज ट्रांजेक्शंस हैपन इन कैश। तो जो कैश ट्रांजेक्शंस उनका रिकॉर्ड नहीं होता कहीं, तो वो ब्लैक मनी बन जाती है। अब जब ये डीमोनेटाइजेशन हुई तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम किनके लिए आई? जिनके पास ब्लैक मनी थी। पहले तो वो लोग एक्सचेंज कराने चले जाते थे पर वो लिमिट रखी गई। अब जिनके पास पैसा ही इतना है वो कैसे रोज़ रोज़ जाके 4-4 हज़ार रुपये करा के कैसे वो उसको एक्सचेंज कराते थे? पैसा ही इतना ज़्यादा। तो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? दैट पीपल हु ओन ब्लैक मनी दे स्टार्टेड टू रिपोर्ट टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज एंड दे चोज कि दैट हम इस चीज़ के ऊपर पेनल्टी पे कर रहे हैं, और अपनी जो ब्लैक मनी थी उन्होंने उसको वाइट में कन्वर्ट कराना शुरू कर दिया, अपनी उस अनअकाउंटेड मनी को बैंक्स में डिपॉजिट कराना शुरू कर दिया। ठीक है।
है। पर कुछ लोग जो ये नहीं कर रहे थे तो फिर उन्होंने अपने पैसे को जलाया भी कुछ लोगों ने, है ना। सो ये सब हुआ उस टाइम, ठीक है। अब 2 मंथ्स दिए गए कि आप विद इन 2 मंथ्स आप जितनी करेंसी एक्सचेंज कराना चाहते हो आप करा लो, 2 मंथ्स। उसके बाद ये टाइम 31 दिसंबर 2016 तक एक्सटेंड हुआ, मीन्स वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया 2 मंथ से ज़्यादा, 31 दिसंबर ये टाइम प्रोवाइडेड था दैट पीपल, अब जिनके पास वाइट मनी है उनको कोई टेंशन नहीं थी, पर जिनके पास ब्लैक थी उनको बहुत बड़ी टेंशन थी उस टाइम पे, ठीक है। तो काउंटरफीट करेंसी, ब्लैक मनी, इनको ख़त्म करने का ये बहुत बढ़िया एक तरीका था, ठीक है। लेट्स डू सम मेरिट्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। हेल्प्स फाइंड आउट ब्लैक मनी, श्रिंकेज ऑफ शैडो इकोनॉमी। शैडो इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी वेयर प्रोडक्शन एक्टिविटी टेक्स प्लेस इन एन इलीगल वे इन कैश, जहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटी कैश में होती है और जहाँ पे टैक्स इवेजन बहुत ज़्यादा होती है। Now you are students of class 12, you must know what is tax evasion. Tax evasion is where people avoid paying taxes by stealing it, by stealing tax. टैक्स की चोरी को हम टैक्स इवेजन बोलते हैं, जहाँ पे हम अपनी टैक्सेबल इनकम को छुपा देते हैं, वो टैक्स इवेजन होता है, ठीक है। तो जिस इकोनॉमी में टैक्स इवेजन हो, बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी हो, जिसमें प्रोडक्शन एक्टिविटी कैश में हो रही है, वो क्या है, शैडो इकोनॉमी। तो जब ब्लैक मनी वाइप आउट होनी शुरू हुई तो शैडो इकोनॉमी हमारी श्रिंक होनी शुरू हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस इंक्रीज। So due to demonetization, as people started converting their black money to white by paying penalties on the tax that they were not paying from so much time, तो इससे क्या हुआ, लोगों ने अपना जो इनकम है उसको अकाउंट कराना शुरू कर दिया, उसके ऊपर टैक्स पे करना शुरू कर दिया। So due to this the tax revenue of the government started to increase, ठीक है। बहुत लोगों को झटका भी लगा था, क्योंकि जिन्होंने अपनी मनी को छुपाया हुआ था उनको लगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि एकदम से डीमोनेटाइजेशन हो गई और हमारे को अपनी सारे पैसा निकालना पड़ रहा है। पैसा जो 500 1000 का नोट था वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा रह गया, दैट वाज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, और उस पीस ऑफ पेपर जो आपने इतने टाइम से छुपा के रखा हुआ था उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही। तो मैनी पीपल लर्न द लेसन, ठीक है। तो इससे गवर्नमेंट का टैक्स इनकम बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो गया। नेक्स्ट, टेरर फाइनेंसिंग इज कर्व्ड। नो, व्हाट डू यू थिंक, टेरर एक्टिविटीज हैपन विद द मनी दैट इज इन योर बैंक अकाउंट? Not at all. All the terror activities happen in cash. All the weapons and all these arms, these are purchased in cash form. तो जितना भी टेरर एक्टिविटी होता है, टेरर फंडिंग होता है, वो ब्लैक मनी से होता है, हमेशा चोरी के हुए पैसे से होता है, ठीक है, टैक्स की चोरी वाला पैसा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब ब्लैक मनी वाइप आउट हुई तो टेरर फाइनेंसिंग भी कम हुई। जो टेररिस्ट फंडिंग के लिए ब्लैक मनी का इस्तेमाल करते थे, अब वो 500 और 1000 रुपये के नोट से कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये फंडिंग भी कम हुई इसमें। लास्ट इज डिजिटल इकोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट। यू माइट हैव हर्ड many times that in India demonetization led to digital economy. It is true. What is a digital economy? Where the transactions don't happen in cash but they happen through bank accounts, ठीक है। तो बहुत सारी point of sale machines आनी शुरू हो गई उस time पे। If you people remember that in almost every shop point of sale machine आनी शुरू हो गई, where you will swipe your card and you will pay money not in cash but through your bank account, ठीक है। तो ये क्यों हुआ था? क्योंकि सबके पास कैश नहीं था। आपके बैंक अकाउंट में जो कैश है आप उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आप कोई पेमेंट तो कर नहीं रहे, जो पेमेंट कर रहा है थ्रू अकाउंट वो सेलर के अकाउंट में जा रहा है ना। तो पॉइंट ऑफ सेल मशीन आनी शुरू हो गई, तो वो डिजिटल फ़ोन पे यूज़ हुआ, पेटीएम बहुत यूज़ होना शुरू हो गया, ठीक है। तो डिजिटल इकोनॉमी की तरफ ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था गवर्नमेंट का। कैशलेस इकोनॉमी बोलते हैं इसको। डिजिटल इकोनॉमी कौन सी होती है? कैशलेस इकोनॉमी। बट इंडियन इकोनॉमी कैन नॉट बी अ कैशलेस इकोनॉमी। कभी भी कैशलेस इकोनॉमी नहीं बन सकती, एटलीस्ट अभी तो नहीं। कैशलेस नहीं, इसलिए इसको बोला गया लेस कैश इकोनॉमी। मीन्स दिस स्टेप encouraged Indian economy to become a less cash economy where people will use less cash.
ये नहीं कैशलेस ही हो जाए। अगर आप वेजिटेबल्स बाय करो तो उस वेजिटेबल वेंडर के पास POS मशीन नहीं होगी, उसको तो कैश भी पे करना पड़ेगा ना। हाउ विल यू पे टू योर मेड इन थ्रू कार्ड? No, it's not possible. Many people are not having accounts. So due to this, many people were forced to have their accounts. बाद में लोगों को रियलाइज हुआ कि एक अकाउंट होना ज़रूरी है। तभी तो मैंने बोला कि पहले ओवर द काउंटर एक्सचेंज हो रहा, बाद में अकाउंट टू अकाउंट ही होना शुरू हो गया कि अकाउंट में पैसे होंगे तो आपको। इसलिए लेस कैश इकोनॉमी की तरफ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, ना कि कैशलेस इकोनॉमी में, ठीक है, ताकि लोग डिजिटल हो, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स करें, डिजिटल पेमेंट्स करें, कैश का कम यूज़ हो। जितना कैश कम यूज़ होगा, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजेक्शन्स होंगी, उतनी ही ब्लैक मनी कम होगी। जो मनी सर्कुलेशन में हो वो होती है वाइट मनी, जो मनी सर्कुलेशन में ना हो, जो अर्न किया और साइड पे रख दिया, वो होती है ब्लैक मनी। हमने ये सब किया है मनी एंड बैंकिंग में कि जो भी पैसा बैंक में आता है, तो उस टाइम पे बैंक में फ्लड हो गया था करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स का, ठीक है। फ्लड आ गया था मीन्स बैंक्स विल बी एबल टू मल्टीप्लाई मोर एंड मोर मनी नाउ, ठीक है। पर धीरे धीरे अब ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी सामने आए, डीमोनेटाइजेशन भी, ठीक है। लेट्स डू द डीमोनेटाइजेशंस, डीमेरिट्स आल्सो। फर्स्ट इज social chaos. Social chaos means social unrest. Due to demonetization, एकदम से social unrest होगी। लोग, मतलब उस टाइम पे सुना था कि कुछ लोगों को हार्ट अटैक भी हो गया था, है ना, जिनके पास पैसा था ज़्यादा और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा सोशल अनरेस्ट एकदम से हो गई। एकदम से आपको कोई बोल दे कि आपके पास 10 लाख रुपए, वो मिट्टी है ना। तो सोशल अनरेस्ट तो होनी ही थी इससे, ठीक है। पीपल वर यूज्ड टू कैश ट्रांजेक्शन अर्लियर, अब एकदम से उनको बोला जाए डिजिटल हो जाए सब कुछ, तो एकदम से सोशल अनरेस्ट वाज अ वेरी ऑब्वियस रिजल्ट, ठीक है। सो पीपल वर नॉट हैविंग कैश, उनकी मेजर नीड्स जो थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। देखो उस टाइम पे शायद आपने सुना हो कि जिनकी शादियाँ थी वो शादियाँ कैंसिल करनी पड़ी थी, क्योंकि शादी के लिए नीड कैश। और इंडिया में मैरिज इज़ अ वेरी लैविश अफेयर, यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ सिंपल मैरिज, है ना, इंडिया में ऐसा नहीं होता। तो जिनकी शादियाँ थी, कैश था नहीं, सब कुछ ही एकदम से बंद करना पड़ा, ठीक है। तो सोशल अनरेस्ट हो गया। सेकेंड, लॉस ऑफ जॉब्स ड्यू टू कैश क्रंच। कैश क्रंच मीन्स शॉर्टेज ऑफ कैश, देयर वाज लेस कैश इन हैंड नाउ, ठीक है। लॉस ऑफ जॉब्स, अब इसे लॉस ऑफ जॉब्स कैसे हुआ? कैश क्रंच हुआ, तो कैश क्रंच से जो लोग प्रोडक्शन को कैश से करते थे, देखो इंडिया में बहुत लोग थे, हैं भी इनफैक्ट, जो कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी में एंगेज्ड हैं, दे आर बाइंग रॉ मटेरियल इन कैश, दे आर पेइंग टू देयर वर्कर्स इन कैश, ऑल द थिंग्स आर डन इन ब्लैक मनी। तो उन लोगों के साथ क्या हुआ? प्रोडक्शन एकदम से बंद हो गई, क्योंकि कैश में डीलिंग करते थे, कैश में लेते थे, कैश में पे करते थे। तो अब क्या, जो उनके पास कैश था उसको कैसे पे करते, क्या यूज़ करते उस कैश का, जो कि अब डीमोनेटाइज हो चुके हैं। उस टाइम पे देयर वाज लॉस ऑफ जॉब्स आल्सो बिकॉज ड्यू टू दिस इमीडिएट कैश क्रंच। Third, slow down in production, as we have already discussed in the second point, that production was slowed down. People who were dealing in cash, who were making the production cash, buying the inputs in cash, paying to the workers in cash, तो एकदम से उनकी production activities slow down हो गई, economic activities were slowed down for the present। मतलब उस टाइम पे जो activities होनी थी, किसी ने suppose प्रॉपर्टी खरीदनी थी, तो वो प्रॉपर्टी अभी फिलहाल नहीं खरीदेगा बिकॉज कैश क्रंच चल रहा है इकोनॉमी में, तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज स्लो डाउन हो गई। बहुत सारे लोगों के बहुत ज़रूरी काम उस टाइम पे बंद हो गए बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, लार्ज स्केल ले ऑफ डेली वर्कर्स। ले ऑफ मीन्स व्हेन द डेली, ले ऑफ क्या होता है? किसी को काम से निकाल देना। सो डेली वेजेस, एज वी हैव ऑलरेडी डन, लॉस ऑफ जॉब्स वाज देयर, पर सबसे ज़्यादा बुरा इफेक्ट किस पे हुआ? डेली वेजेस पे। डेली वेजेस, वेरी पुअर पीपल हु सर्वाइव ऑन डेली वेजेस विच दे अर्न व्हेन दे वर्क फॉर फुल डे। तो जो
डेली वेजर्स थे जिनको पैसा कैश में मिल रहा था, उनके कोई अकाउंट थे नहीं, तो उनको ले ऑफ, उनको काम से निकाल दिया गया बिकॉज जो उनके मालिक थे जो उनको काम पे रखा हुआ था, दे वर नॉट हैविंग कैश टू पे, तो दे वर फोर्स्ड टू लीव द वर्क। लास्ट, long queues already discussed, demonetization led to long queues, बहुत सारी लंबी लंबी लाइंस लगती थी बैंक्स के आगे, एटीएम्स के आगे, एंड बारी नहीं आती थी, जब बारी आती थी तब तक कैश खत्म हो जाता था, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हुए इसके। देखो, कोई एक एक्टिविटी होते उसके कुछ अच्छे और कुछ बुरे तो होने ही थे इफेक्ट, ठीक है। दिस मूव बाय द गवर्नमेंट, इट वॉज अ वेरी गुड मूव, but it came with its repercussions because the preparation of the government was not very good to deal with these things. They just focused on removing black money from the country and removing the fake currency from the country, but the preparations were quite low and the government needed more preparations for it, right? So this was about demonetization. You need to do just this much, you don't need to go in details, कब हुई, पहले कितने कौन कौन से नोट्स थे, नहीं करने की जरूरत, ठीक है। एंड दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। टुमारो वी विल बी डूइंग जीएसटी, एंड जीएसटी थोड़ा सा डिटेल में जाएगा, ठीक है, पर वो भी बहुत डिटेल में नहीं हमने करना, जितना भी ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।